Theorem is 1.4. Prove that root 2 is irrational. We have to prove root 2 is irrational. Then write your proof. Let root 2 be rational, and in it and in its simplest form. We are going to prove root 2 is irrational using contradiction method. हम लोग इसको contradiction method से प्रूफ करेंगे. So I have written root 2 be rational. ये irrational प्रूफ करना है, तो हम लोगों ने मान लिया कि ये रेशनल है. और रेशनल है तो p by q के फॉर्म में होगा, और p by q इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म. Means root 2 be rational and in its simplest form. Let root 2 is equal to p by q, where p and q P and Q are integers and Q is not equal to 0. Squaring both sides, root 2 squared is equal to P by Q squared. Then we have 2 is equal to p square by q square. Squaring both sides. Then we can write p square is equal to 2q square. This is relation 1. So we can write that p square is multiple of 2. P square is multiple of 2. If p square is multiple of 2, then p is also multiple of 2. This implies that p is multiple of 2. This is relation 2. Now let p is equal to 2m. Then squaring both sides, we have p square is equal to 4m square. Now putting p square is equal to 2q square for 1. यहाँ से p square 2q square है, then we can put p square 2q square is equal to 4m square. इस 2 को इधर लाएंगे, then we have q square is equal to 4m square by 2, means 2m square. So we can write here q square is multiple of 2. This implies that q square is
multiple of 2. This implies that Q is multiple of 2. This is relation to 3. Then from relation 2 and 3, so from 2 and 3, 2 and 3, P and Q both are multiple of 2. P and Q both are multiple of 2. दोनों जब 2 का मल्टीपल है, then P by Q is not in simplest form. This contradicts our assumption that this contradicts our assumption that A by B, P by Q is in simplest form. So root 2 is irrational. Now we will prove that root 3 is irrational. Now see, we have to prove that root 3 is irrational. इससे पहले हम लोग प्रूफ किया root 2 is irrational, उसी का प्रूफ लिखा हुआ है. यदि आपको यह याद है कि how we can prove root 2 is irrational, then you can write the proof of root 2 is irrational, or root 5 is irrational, or root 6 is irrational, or root 7 is irrational. देखिए इसमें हम क्या क्या चेंज करते हैं, वही आपको भी चेंज करना है. क्या लिखेंगे? लेट रूट 3 be rational and in its simplest form. Let root 3 is equal to P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Squaring both sides, then root 3 whole square is equal to P by Q whole square. Squaring both sides. Then root 3 whole square means 3. 3 is equal to P square by Q square. Now P square is equal to 3Q square. Then P square is equal to 3Q square. Now we can write P square is multiple of 3. Multiple of 3. P square is multiple of 3. So P is multiple of 3. So P is multiple of 3. Let P is equal to, now let P is equal to 3m. यहाँ 3m मानेंगे. Then P square is equal to, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड. Then P square is equal to 9m square. You can write squaring both sides. Squaring both sides. Both sides. Then अब P स्क्वायर के बदले यहां पर देखिए 3Q स्क्वायर है, तो यहां लिखेंगे from 1 क्या होगा? From 1. तो P स्क्वायर के बदले यहां लिखेंगे 3Q स्क्वायर. तो ये हो गया 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर. 9m स्क्वायर. यस. देन यहां क्या हुआ? P स्क्वायर के बदले 9mQ स्क्वायर रखेंगे. देन ये 9m स्क्वायर. तो यहां ये
होगा 9m² और यहां हो जाएगा 9, देन नहीं 9 नहीं होगा 3 होगा, इट विल बी 3, यहां पर होगा ये 3 आएगा नीचे में 3, तो 3 से ये डिवाइड हो गया 9, देन वी हैव 3m², देन वी कैन राइट q² इज मल्टीपल ऑफ 3, ये देखिए q² इक्वल टू 3m² आ रहा है, देन वी विल राइट q² इज मल्टीपल ऑफ 3 and q is multiple of 3. Now from 2 and 3, p and q both are multiple of 3, दोनों 3 का मल्टीपल है, देन जब दोनों p by q, p भी 3 का मल्टीपल है और q भी 3 का मल्टीपल है, मीन्स यू कैन से ये 3m है और ये 3n है, तब ये 3 जब इसमें कॉमन है तब दिस इज, देन वी कैन से इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होगा, जब p और q का HCF फॉर्म होगा, तो यहां तो HCF देखिए यहां HCF 3 हो जा रहा है, HCF 3 है मीन्स p by q इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, दिस कंट्राडिक्ट आवर एज्यूम्पशन दैट p by q इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है हम जो माने थे p by q कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये तो कंट्राडिक्ट कर रहा है, दिस कंट्राडिक्ट्स आवर एज्यूम्पशन दैट p by q इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि p by q दोनों 3 का मल्टीपल है इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सो रूट थ्री इज इरेशनल, दिस इज द वे टू प्रूफ रूट 3 इज इरेशनल। मान लीजिए कि हमको प्रूफ करना है कि रूट 5 इज इरेशनल, यदि करना है ये रूट 5 इज इरेशनल, हमको करना है प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल, तो कैसे करेंगे, क्या क्या चेंज करेंगे, सो आपको हम इसमें बताते हैं क्या क्या चेंज करना होगा। देखिए यहां लिखेंगे लेट रूट 5 बी रेशनल एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, फिर क्या लिखेंगे रूट 5 is equal to p by q where p and q are integers and q is not equal to 0, फिर क्या लिखेंगे रूट 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू p by q का होल स्क्वायर, स्क्वायर इन बोथ साइड्स, तब क्या होगा रूट 5 का होल स्क्वायर 5 आ जाएगा, 5 आया, p स्क्वायर बाई q स्क्वायर, अब क्या होगा p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर, तो हो गया p स्क्वायर 5q स्क्वायर हो गया, p स्क्वायर अब क्या लिखेंगे p स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5, p स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5, सो यदि p स्क्वायर 5 का मल्टीपल है देन p इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5, सो p इज मल्टीपल ऑफ 5 लिखेंगे, देन अब क्या लिखेंगे नाउ लेट p इज इक्वल टू 5m, लेट p इज इक्वल टू 5m लिखेंगे, क्या आएगा दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर आएगा, 25m स्क्वायर आया, अब ये क्या होगा p स्क्वायर के बदले यहां से 5q स्क्वायर लाएंगे, p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर है, तो p स्क्वायर के बदले लिखेंगे यहां पर 5q स्क्वायर, यहां से लिए हैं यहां से p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर है, तो लिखे यहां 5q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, तो 25m स्क्वायर, 25m स्क्वायर, अब यहां क्या होगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर बाई 5, अब ये कितना आएगा, तो ये आ गया 5m स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर है, तो q स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 हो गया, देन q इज मल्टीपल ऑफ 5 होगा, q इज मल्टीपल ऑफ 5, फिर क्या लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3 p and q both are multiple of 5, दोनों 5 का मल्टीपल है, this contradicts our assumption that p by q is in simplest form, क्योंकि दोनों में 5 कॉमन है, तो p और q, p and q दोनों में जब 5 कॉमन होगा तो p by q नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, p by q सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा, तब
p बाई क्यू को हमने माना था कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये यहां पर प्रूव हुआ कि इट इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, दिस कंट्राडिक्ट आवर assumption. So root 5 is irrational. So root 5 is irrational. This is the way to prove the root 5 is irrational. क्या क्या चेंज करना है इसमें आपको स्पष्ट दिखाई देता होगा. Now I hope you will be able to learn it. देखिए इसको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 2 है. प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल. कैसे प्रूफ करना है? तो इसी तरह कंट्राडिक्शन से इसको हम लोग प्रूफ करेंगे. लिखेंगे प्रूफ लेट 3 + 2 रूट 5 बी रेशनल. ये रेशनल है, ठीक है, ये रेशनल है. तो रेशनल से हम 3 को मीन्स रेशनल माइनस करेंगे. 3 + 2 रूट 5 है तो इससे 3 माइनस किए, रेशनल से रेशनल माइनस किए तो क्या आएगा? रेशनल आएगा. ये इज रेशनल. आप लिखेंगे रेशनल माइनस रेशनल इज रेशनल, इज रेशनल. ये रेशनल है. अब देखिए 3 3 कैंसिल हो गया, ये 3 और ये 3 कैंसिल आया तो क्या आया? 2 रूट 5 आया. तो 2 रूट 5 इज रेशनल हुआ. हमको रूट 5 यहां से निकालना है. तो रूट 5 कैसे निकलेगा? 2 से डिवाइड करने से. तो इसको 2 भी रेशनल है और 2 रूट 5 भी रेशनल है. तो रेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो रेशनल आएगा. तो क्या लिखेंगे? 2 रूट 5 बाई 2 इज रेशनल, इज रेशनल. रेशनल लिखेंगे. 2 से 2 कट गया तो क्या आया? रूट 5 इज रेशनल. रूट 5 क्या है? रेशनल है. लेकिन हम लोग अभी प्रूफ किया है कि रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 11 ये सब इरेशनल. बट यहां लिखिए बट रूट 5 इज इरेशनल. इरेशनल, ये इरेशनल है. तो क्या होगा? दिस contradicts our assumption. Thus 3 + 2 रूट 5 is irrational. इरेशनल होगा. देखिए प्रूफ कर दिए कंट्राडिक्शन से. सबसे पहले इसको हमने रेशनल मान लिया. यह जब रेशनल है तो इसमें से हम 3 माइनस करेंगे तब पर भी रेशनल होगा. तो 3 माइनस किए तो 3 जब कैंसिल हो गया तो 2 रूट 5, तो 2 रूट 5 इज रेशनल. अब 2 रूट 5 रेशनल है तो 2 रूट 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तब पर भी रेशनल होगा. अब 2 2 कट गया तो रूट 5 इज रेशनल. लेकिन हमको मालूम है बट रूट 5 इज रेशनल. दिस कंट्राडिक्ट्स आवर assumption. Thus 3 + 2 रूट 5 इज irrational. This is the way to prove such type of question. दूसरा देखिए प्रूफ दैट 7 रूट 5 इज irrational. तो क्या लिखेंगे? प्रूफ लिखिए लेट 7 रूट 5 बी रेशनल मान लिया हमने. यह जब रेशनल है तो रेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो रेशनल होगा. इज रेशनल होगा. रेशनल है. अब 7 7 कैंसिल होगा तो क्या आएगा? रूट 5 इज रेशनल होगा. बट रूट 5 इज रेशनल है. लेकिन हमको मालूम है कि रूट 5 क्या है? इरेशनल है. बट रूट 5 इज irrational. This contradicts our assumption. Thus
7 root 5 is irrational. This is the very easy way to prove 7 root 5 is irrational or 3 plus 2 root 5 is irrational. I think you are able to complete the exercise 1.3. Thank you for watching the video.